बच्चों पिछली क्लास में हमने फिलिप्स कर्व शुरू किए थे। फिलिप्स कर्व shows the trade-off between inflation rate and unemployment rate. It was that if inflation is above the natural rate of unemployment, or expected inflation is higher than the actual inflation, then unemployment will be lower than the natural rate of unemployment for that time period. बट इसमें सबके व्यू पॉइंट केन्जियन मोनेटरिस्ट क्लासिकल के आपस में कुछ ना कुछ डिफरेंस है एंड शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व में डिफरेंस है। हम फिर थोड़ा सा उसको रिवाइज करते हैं कि अगर आप वाई एक्सिस पे इन्फ्लेशन की जगह मनी वेजेस लें जो कि ओरिजिनल डाटा ड्रा किया गया एंड अनएम्प्लॉयमेंट को आप एक्स एक्सिस पे लें तो it is downward sloping from left to right, a curve which is showing that there is a trade-off between real money, nominal money wages and unemployment rate. If nominal money wages increases, unemployment decreases from the natural rate of unemployment. This data was original data, and in this case on the original Phillips curve, we are in the basic physics curve, we are taking money wages on the y-axis. Keynesian used this Phillips curves to explain their theory of demand pull inflation and cost push inflation. In Keynesian Phillips curve, everything is same, but explaining the trade-off between inflation and unemployment. On y-axis, we are taking the inflation or increase in money supply, and x-axis there is unemployment. And it explains that with increase in money supply, inflation rate will increase from inflation INA से आप कह लें to INB to INC and IND, and with every increase in money supply and increase in inflation, unemployment decrease from its natural rate mu I to mu N and mu A to mu B to mu C and mu D. But when there are very high money wages, then if we increase the money supply further, unemployment will not decrease, or there will be very little decrease in the unemployment. But फिलिप्स कर्व जो से ये केंजियन की थ्योरी में दो बातें एक्सप्लेन करने के लिए दे यूज केंजियन यूज्ड इट फॉर द explaining demand pull inflation and cost push inflation. Demand pull inflation when unemployment is at natural rate and government want to increase government want to decrease the unemployment from its natural rate, then they will increase the aggregate demand by decreasing taxes or by increasing government expenditure. Increase in aggregate demand will increase the price level, and it is explained in this way: demand pull inflation. On the other side, when there is increase in money supply, money wages increase, and increase in money wages increase the cost of production, and it explains the cost push inflation. So inflation Phillips curve was used by Keynesian to explain the demand pull inflation and cost push inflation, and that there is trade-off between unemployment and inflation. Keynesian theory was very appealing and it was easy to understand, but in 1970 there was a problem that instead of in a trade-off between inflation and unemployment, it was seen that inflation and unemployment both were rising. According to Phillips curve and according to Keynesian Phillips curve and Keynesian theory, inflation increase होगा तो unemployment कम होगी, और अगर इन्फ्लेशन कम होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। लेकिन अगर दोनों चीज़ें इकट्ठी बढ़ रही हूँ तो इट्स मीन के it is not showing the trade off. इस चीज़ को केन्स ने कैसे एक्सप्लेन किया, केन्जियंस ने कैसे एक्सप्लेन किया कि there is trade off between the inflation and unemployment, but when both increase simultaneously, then they reach a higher Phillips curve. PC1 is lower Phillips curve than PC2 and PC3 and so on. And when we reach a higher level of new Phillips curve, then there is again a trade-off between inflation and unemployment. Inflation बढ़ा तो unemployment कम. So it is called the stagflation.
मोहम्मद अवैस, आप क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, फिलिप्स का केंद्रीय ओरिजिनल फिलिप्स का is the data, original data which is uh, drawn against the original data of money, wages and unemployment, which show a trade-off between the money, wages and unemployment. Then Keynesian Phillips curve, which shows a trade-off between inflation and unemployment in the short run and in the long run. And then there are the monetarist Phillips curve. According to the monetarist, role of money, they say that in the short run, there is a possible that there is a trade-off between unemployment and inflation, but in the long run, it is not possible. According to the monetarist viewpoint, if economy is at point A and government want to reduce the unemployment to mu1 and expected rate of inflation is zero at short run Phillips curve, ये अब EI जो लिखा हुआ है expected inflation rate is equal to zero, and the government want to decrease the unemployment rate. So what government do? It increase the aggregate demand, same which was in the Keynesian Phillips curve. It reduce the taxes or increase the government expenditures. Increase in aggregate demand increase the inflation rate to the 4%, but worker, laborers, and the job employee are hiring people don't understand that this is increase in the money value. इसमें ये है कि आप जब फिलिप्स का मॉनिटर से एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आपने वाई एक्सिस पे इन्फ्लेशन के साथ रेट ऑफ चेंज इन मनी वेजेस भी दिया है. So they do not realize कि ये increase also only in nominal wages or real money wages increase नहीं हुई. So unemployment decreased to mu1 and inflation increased to 4%. Economy reached to the point B. But in the long run, people come to know that this increase in the money wage was only increase in the nominal money wage and it was not increase, and they decrease the labor supply and economy reached again to the point C. अब अगर economy point C पे आती है, this is another short run Phillips curve, or there is a trade off between the short run Phillips curve between unemployment and इन्फ्लेशन. अब इकानमी अगर पॉइंट सी पे गवर्नमेंट दोबारा डिक्रीज करना चाहती है अनएम्प्लॉयमेंट टू म्यू टू, दे विल इंक्रीज एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट ऑफ इस नए फिलिप्स कर्व पे क्या 4%. अगर गवर्नमेंट डिक्रीज करना चाहती है तो दे इंक्रीज द इन्फ्लेशन टू द 8%. अगेन वर्कर ये रियलाइज नहीं करते कि इंक्रीज सिर्फ नॉमिनल मनी वेजेस में है, कि सिर्फ मनी वेजेस रियल वेजेस नहीं बढ़ी हैं बल्कि मनी वेजेस के साथ प्राइस लेवल भी बढ़ गए, तो अनएम्प्लॉयमेंट दोबारा डिक्रीज हो जाएगी. बट इन द लॉन्ग रन people come to know कि ये nominal increase था. Economy again move to point E. All points on long run Phillips curve which are A, C and E, they are the stable because अगर government intervention ना हो तो economy इन point से move नहीं करती. Point A पे आपका unemployment rate कौन सा natural rate of unemployment है और फिर expected actual inflation rate दोनों इन्फ्लेशन रेट कौन सा वो जीरो है. सी पे इन्फ्लेशन रेट 4% है लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट रेट नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है. अगेन ई पे भी नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है लेकिन इन्फ्लेशन रेट 8%. इन सब पॉइंट्स पे इकोनॉमी स्टेबल है जब तक कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन ना हो. गवर्नमेंट इंटरवीन करती है, अनएम्प्लॉयमेंट फॉर द शॉर्ट रन डिक्रीज होगी, लेकिन जब लोगों को पता चलेगा कि दिस इंक्रीज इज ओनली नॉमिनल इंक्रीज इन वेजेस, इकानमी अगेन मूव टू पॉइंट सी. एक बात, दूसरी बात इसमें यह है कि जब इकानमी एक दफ़ा पॉइंट ए से सी पे चली गई या सी से ई पे, तो आपका जो इन्फ्लेशन रेट 8% पे चला गया, आप उसको डिक्रीज नहीं कर सकते. अगर आप उसे डिक्रीज करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप पॉइंट सी पे हैं और इकानमी इन्फ्लेशन रेट को डिक्रीज करना चाहती है, तो दे विल डिक्रीज द एग्रीगेट डिमांड. वही फिलिप्स केंजियन थ्योरी डिमांड पुश और कास्ट पुश इन्फ्लेशन वाली कि आप डिमांड जो सी है उसको डिक्रीज करें ताकि मनी वेजेस और इन्फ्लेशन रेट दोनों कम हो जाए. लेकिन होगा क्या कि अगर इकोनॉमिक पॉइंट सी पे है, गवर्नमेंट वांट टू रिड्यूस द इन्फ्लेशन रेट, दे रिड्यूस द एग्रीगेट डिमांड, लेकिन लोग ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि उनकी रियल वेजेस जो सी हैं वो कम नहीं हुई, सिर्फ मनी वेजेस कम हुई हैं. इसलिए लेबर सप्लाई कम हो जाएगी और इकानमी विल मूव फ्रॉम पॉइंट सी टू पॉइंट एफ. एट दिस पॉइंट एफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज अबव द नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट, so economy will go in recession. कुछ टाइम पीरियड के लिए इकोनॉमी रिसेशन में चली जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज कर जाएगा, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जब लोगों को पता चलेगा कि रियल वेजेस जो उनसे वो कम नहीं हुई, तो इकोनॉमी पॉइंट एफ से पॉइंट ए की तरफ चली जाएगी. इन द
मतलब मुख्तार तरीन वर्डिंग में आप कहना चाहें तो फिलिप्स का जो मोनेटिस्ट है, अकॉर्डिंग टू देम, कि there exists a trade-off between unemployment and inflation in the short run, but there is no trade-off between the unemployment and inflation in the long run. केन्जियन और फिलिप्स केन्जियन फिलिप्स का और मोनेटिस्ट फिलिप्स का में ये डिफरेंस। ये उसकी सारी डिटेल्स हैं, होपफुली कि आप पढ़ के आए होंगे। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। दूसरा इसमें जो डिफरेंस ये है कि मेन रोल इसमें मोनेटिस्ट फिलिप्स का में एक्सपेक्टेशंस का, इसलिए एक्सपेक्टेशन ऑगमेंटेड फिलिप्स का भी इसको कहते हैं जो मोनेटिस्ट फिलिप्स का है। दूसरा जो लोग ये रियलाइज नहीं करते इन द शॉर्ट रन कि ओनली मनी वेजेस इंक्रीज हुई है, रियल वेजेस इंक्रीज नहीं हुई, इस चीज़ को मनी इल्यूजन कहते हैं। ये एक्टिविटी हमने देख ली थी। अच्छा, इसको अब आप सिंपली कहना चाहें तो अकॉर्डिंग टू द मोनेटिस्ट, अनएम्प्लॉयमेंट इज ओनली बिलो द नेशनल रेट व्हेन द एक्चुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज अबव द एक्सपेक्टेड रेट। कि गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट को नेशनल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से सिर्फ इस सिचुएशन में कम रख सकती है जब वो मुसलसल एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट जो एक्सपेक्टेड है उससे अबव हो। जितना लोग समझ रहे हैं मुसलसल आप इन्फ्लेशन रेट को उससे ज़्यादा रखें। इस तरह रखने के लिए गवर्नमेंट को कंटिन्यूसली मनी सप्लाई इंक्रीज करनी पड़ेगी, और अगर गवर्नमेंट कंटिन्यूसली ऐसा करती है तो इट वुड बी रिजल्ट इन हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन आपने पढ़ा है, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल फॉर एनी इकॉनमी। और अगर उससे आप वापस जाना चाहते हैं तो वो मैंने आपको बताया कि आप एक दफ़ा हायर इन्फ्लेशन रेट पे पहुंच गए तो वापस जाएंगे तो इकॉनमी विल fall in recession for the some time and then it will go back to the natural rate of unemployment level. This analysis of Phillips curve become known as expectations augmented Phillips curve. इसको नॉर्मली मोनेटिस्ट फिलिप्स कर्व के बजाय अगर आप क्वेश्चन अक्सर दिए होते हैं तो मैं ये लिखा था एक्सप्लेन द एक्सपेक्टेशंस augmented Phillips curve. Then दूसरा इससे मोनेटिस्ट का ये व्यू पॉइंट भी वाजे होता है कि अकॉर्डिंग टू द मोनेटिस्ट इकोनॉमिस्ट मनी इज न्यूट्रल इन द लॉन्ग रन बट नॉट इन द शॉर्ट रन। इन द लॉन्ग रन मनी न्यूट्रल है। ये रियल न्यूट्रल होने का मतलब क्या है कि डू नॉट इन्फ्लुएंस द रियल वेरिएबल। रियल वेरिएबल हमारे इस एनालिसिस में कौन सा है? अनएम्प्लॉयमेंट। इट इन्फ्लुएंस ओनली द नॉमिनल वेरिएबल, जैसे नॉमिनल वेजेस हो गई, इन्फ्लेशन रेट हो गया, बट इट इज नॉट द न्यूट्रल इन द लॉन्ग रन। एक और प्रॉब्लम जो मॉनेटरी फिलिप्स कर्व के साथ है कि ये कि आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट है और एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट है, इनके दरमियान जो गैप है इसको यूज़ करके गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी जो है उसको अप्लाई करेगी और अपना रिजल्ट गेन करेगी। लेकिन ये कि गैप होगा कितना, कितनी देर बाद दोबारा लोगों को पता चल जाएगा कि ये इंक्रीज जो सा था मनी वेजेस में वो नॉमिनल था, या ये कि इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज हो चुका है, तो इसके बारे में कुछ भी अंदाजा नहीं है कि ये लैग्स कितने हैं। अकॉर्डिंग टू द फ्रीडमैन द लेग्स विल बी लॉन्ग एंड वेरिएबल, कि लेग्स जो से इनमें लेंथी होंगे, साथ इनमें हर दफ़ा डिफरेंस होगा, ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा सेम इनकी लेंथ हो। अगेन कीपिंग, जिसको आप हाइपर इन्फ्लेशन भी कह सकते हैं, कि आप मुसलसल गवर्नमेंट ये है कि आपकी एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट आपके एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट से हायर हो तो ही आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो नेचुरल है उससे म्यू 1 से रख सकते हैं। मतलब ये कि आप ए से जब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जीरो इन्फ्लेशन रेट है, आप एकदम उसे 5% पे ले जाएं। लोग यहाँ पे अगर इकॉनमी स्टेबल है वापस सी पे जाना चाह रही है, लोगों को पता चल गया है कि इन्फ्लेशन रेट बढ़ चुका हुआ है, तो इससे पहले कि इकॉनमी सी पे जाए अचानक ही इन्फ्लेशन रेट 10% कर दें, यानी कि मनी सप्लाई इंक्रीज कर दें। अगर दोबारा जब आप रियलाइज करें कि इकॉनमी इज मूविंग टूवर्ड ई, तो आप दोबारा इसे एफ पे ले जाएं, मुसलसल 15% आप इन्फ्लेशन रेट कर दें। तो इस तरह तेजी से आप इन्फ्लेशन रेट या मनी सप्लाई को इंक्रीज करते रहें तो ही ये पॉसिबिलिटी है कि आप अनएम्प्लॉयमेंट को बिलो नेशनल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रख सकें, बट इसका रिजल्ट फिर वही हाइपर इन्फ्लेशन निकलेगा। ये हमने जो पढ़ा अभी तक ये मोनेटिस्ट व्यू पॉइंट था। उससे पहले हमने केन्जियन पढ़ा और उससे पहले हमने नेशनल रेटा को ड्रा किया जिससे फिलिप्स कप असल में ओरिजिनेट हुआ। नाउ देयर इज न्यू क्लासिकल थ्योरी। अगर न्यू क्लासिकल थ्योरी don't see it, it is also you may say that it is the extreme form of monetary theory और फ्रीडमैन viewpoint को उन्होंने एक स्टेप और आगे किया। उनका ये कहना था कि जो फ्रीडमैन ने
एक्सप्लेन किया है कि आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो हमेशा एक पॉइंट पीछे रहती हैं, लैग रहती हैं वन पीरियड देन द एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट। उन्हें कहते हैं अडॉप्टिव एक्सपेक्टेशंस। अडॉप्टिव कैसे कि आपने गवर्नमेंट का पिछला बिहेवियर और अपना देखते हुए उनको अडॉप्ट किया है। लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यू क्लासिकल थ्योरी, एक्सपेक्टेशंस आर नॉट अडॉप्टिव, एक्सपेक्टेशंस आर रैशनल। रैशनल और अडॉप्टिव में क्या फ़र्क है कि अडॉप्टिव ये कि आप हर दफ़ा सेम तरीके से बिहेव कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन आपने रियलाइज़ नहीं किया, आपने ये समझा कि आपकी रियल वेजेस इंक्रीज़ हुई हैं, अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज़ होगी और हर दफ़ा आप यूँ कर रहे हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट यू मे नॉट मे फूड पीपल परसिस्टेंटली, क्या मुसलसल लोगों को इस तरह बेवकूफ़ नहीं बना सकते। एक्सपेक्टेशंस अडॉप्टिव नहीं होती बल्कि रैशनल होती है। रैशनल मीन मंतकी, जो मंतक के साथ हो, जो अकल के हिसाब से हो कि आप एक आध दफ़ा तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन बाई इंक्रीजिंग द मनी सप्लाई कंटिन्यूसली आप ये नहीं कर सकते कि आप एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट को आप एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट से हाई रखें और अनएम्प्लॉयमेंट को आप नेचुरल रेट से कम रख सकें। Money illusion would not occur each time. The government tried to reduce, and this is the new classical economists argued that the firms and the worker would not suffer persistent money illusion. Persistently आप नहीं उन्हें बेवकूफ़ी में रख सकते. The government may be able to fool them once, but they would not be able to do so continuously. Firms and workers would learn from the past mistake. Therefore, over time, if the government persistently try to reduce unemployment below the natural rate, then the firms and workers would immediately expect the higher inflation rate. Hence, the effect of attempt to stimulate aggregate demand by raising the money supply are simply to raise the inflation immediately. There would be no trade-off between unemployment and inflation, not in the long run, neither in the long run, nor in the long run, neither in the short run. Money is neutral in the short run and money is neutral in the long. ये क्लासिकल व्यू पॉइंट है कि मनी रियल वेरिएबल को इफेक्ट नहीं करती, ना तो शॉर्ट रन में ना ही लॉन्ग रन में। मोनेटिस्ट का व्यू पॉइंट है कि इन द शॉर्ट रन इट मे इफेक्ट। इसमें कुछ इस तरह से है कि अगर इकोनॉमी पॉइंट ए पे नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है और गवर्नमेंट वांट टू रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट फ्रॉम ए टू म्यू वन एंड दे इंक्रीज द 4% इन्फ्लेशन, तो लोगों को फ़ौरन ही पता लग जाता है कि इन्फ्लेशन है, मनी वेजेस इंक्रीज नहीं हुई और इकानमी ए टू बी पे जाने के बजाय, मैंने भी लिखा नहीं है, डायरेक्ट ए टू सी पे मूव कर जाएगी। और अगेन गवर्नमेंट जब ट्राई करेगी 8% इन्फ्लेशन के लिए, तो एक अनएम्प्लॉयमेंट कम होने की बजाय इकानमी डायरेक्ट सी टू पॉइंट ई मूव करेगी। So according to classical economists, it is not possible to use this trade-off as a policy option, not in the short run, nor in the long run. A new classical view of Phillips curve as a vertical line running through the natural rate of unemployment. According to new classical economists, Phillips curve is a vertical straight line which is passing through the natural rate of unemployment at the x-axis, and there is no trade-off between इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट 0% लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर इन्फ्लेशन रेट गवर्नमेंट 6% करती है तो लोग इमीडिएटली उसको रिकॉग्नाइज करके पॉइंट म्यू से पॉइंट ए पे चले जाएंगे। इसी तरह अगर गवर्नमेंट पॉइंट ए पे और इन्फ्लेशन कम करना चाहती है यहाँ से और बी पे वापस आना चाहती है जीरो इन्फ्लेशन पे, तो इसके दो सिनारियो हैं। अगर लोग अडॉप्टिव एक्सपेक्टेशन पे चल रहे होंगे, उन्हें पता होगा गवर्नमेंट का बिहेवियर, वो गवर्नमेंट के बिहेवियर को रिकॉग्नाइज नहीं करते, मतलब ये कि उनकी आदत पड़ गई हुई है कि गवर्नमेंट कहती कुछ है और करती कुछ है। तो वो अगर गवर्नमेंट ये कहे भी कि हम एग्रीगेट डिमांड करके इन्फ्लेशन कम बढ़ा के कम करके इन्फ्लेशन कम कर रहे हैं, तो इकानमी पॉइंट ए से पॉइंट यू पे जाने के बजाय पॉइंट ए टू पॉइंट सी पे चली जाएगी और इकानमी रिसेशन में चली जाएगी। लेकिन अगर लोग रैशनल एक्सपेक्टेशंस पे काम कर रहे हैं और उन्हें पता हो कि गवर्नमेंट जो सी उसकी क्रेडिबिलिटी है, ये दो सिनेरियो डिस्कस हुए हैं आपकी बुक में, इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो इकानमी डायरेक्ट पॉइंट ए टू पॉइंट यू पे जाएगी। एक दिया हुआ है कि अज्यूम करें कि इकानमी इज एट पॉइंट ए, अनएम्प्लॉयमेंट इज एट द नेचुरल रेट एंड इन्फ्लेशन इज 6%, expected inflation is 6% and economy is in short on Phillips curve too, which corresponds to the expected inflation rate of 6%. Now, if government announced plans to reduce the aggregate demand so that inflation return to the zero, then there are two scenarios. First scenario, if expectations are rational and the firms and workers believe that government, then they expect zero. अगर रैशनल हो, लोगों को पता हो कि जीरो वो कह रहे हैं तो जीरो ही होगा, तो इकानमी रिसेशन में नहीं जाएगी। लेकिन अगर लोग बिलीव नहीं करेंगे, अडॉप्टिव एक्सपेक्टेशन होंगी, गवर्नमेंट अनाउंसमेंट इज नॉट क्रेडिबल, तो उसका रिजल्ट जो सा उससे डिफरेंट निकलेगा।
ये सेकंड सिनेरियो डिस्कस हुआ होगा। अगर क्रेडिबल हो तो फिर वो डायरेक्ट जो है इकॉनमी रिसेशन में जाए बगैर इन्फ्लेशन रेट जो है वो कम हो जाएगी। ये एनालिसिस देने का पर्पज़ ये है कि यूके गवर्नमेंट ने 1979 में इस बात को इन्फ्लेशन कम करने के लिए एग्रीगेट डिमांड कम की, लेकिन साथ ही इन्फ्लेशन रेट और मनी सप्लाई भी डिक्रीज़ की। लेकिन लोगों ने ये बिलीव नहीं किया कि ये जो डिक्रीज़ है मनी सप्लाई में, इससे सिर्फ उनकी नॉमिनल वेजेस कम हुई हैं, रियल वेजेस कम नहीं हुई। जब लोगों ने इस बात पर यकीन नहीं किया तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज हो गई और इकॉनमी मूव टू रिसेशन, और पॉलिसी जो उनकी और समझे कि सक्सेसफुल नहीं रही। ये एक्टिविटी है explain clearly using a diagram exactly why rational expectation government cannot permanently reduce unemployment below the natural rate। ये सारा वही है, हम पीछे पढ़ चुके हैं, आपने सिर्फ ये एक्सप्लेन करना है कि अगर अडॉप्टिव एक्सपेक्टेशन हो तो जब लोग 5% एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप इन्फ्लेशन अचानक 10% कर दें तो इकानमी विल मूव फ्रॉम म्यू टू म्यू 1। लेकिन अगर रैशनल एक्सपेक्टेशन है, आपने मनी सप्लाई इंक्रीज की, इन्फ्लेशन बढ़ा, लोगों को इमीडिएटली पता है कि उनकी मनी वेजेस बढ़ी हैं, रियल वेजेस नहीं बढ़ी, क्योंकि उतनी साथ इन्फ्लेशन इंक्रीज कर रहा है तो इकानमी विल मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू सी डायरेक्टली, देयर वुड बी नो डिक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट। ए टू सी कब मूव करेगी? जब रैशनल एक्सपेक्टेशन होंगी। ए टू बी जब या तो अडॉप्टिव एक्सपेक्टेशन हो और या ये कि एक शॉक की तरह आप सरप्राइज दें लोगों को, ये लिखा हुआ है, वो बिल्कुल एक्सपेक्ट ना कर रहे हो कि आपने असल में मनी सप्लाई इंक्रीज की है। अब जो इसमें जो हमने देखा है, अगर आपके पास नोट्स हैं तो एक दफ़ा उन्हें खोल के देखें। ये चैप्टर अब कंप्लीट मैंने इस पर रिवाइज कर दिया है। तो इसमें सिंपली ये अंडरस्टैंड कर लेना कि ये फिलिप्स कर्व है और ये ट्रेड ऑफ है, तो ये काफ़ी नहीं है। इसमें आपको फिलिप्स कर्व में जो शुरू में कॉन्सेप्ट है वो, प्लस उसके बाद केन्जियन थ्योरी को किस तरह से ये सपोर्ट करता है, शॉर्ट और लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व में डिफरेंस इन केन्जियन थ्योरी। तो उसके बाद ये कि अगर स्टैग्फ्लेशन हो इकोनॉमी में तो उसको आप फिलिप्स कर्व में कैसे फिट कर सकते हैं। उसके बाद मोनेटिस्ट व्यू पॉइंट, अडॉप्टिव एंड रैशनल एक्सपेक्टेशन, एंड देन न्यू क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फिलिप्स कर्व या ऑगमेंटेड इन्फ्लेशन रेट, ऑगमेंटेड एक्सपेक्टेशन फिलिप्स कर्व। इन सब में क्या डिफरेंस है, इसमें जितनी भी टर्मिनोलॉजी यूज हुई है उसमें से कोई आपको जिसकी अंडरस्टैंडिंग ना हो, कोई एक्टिविटी दी है तो आप उस सारी को देखें और इसमें कोई भी क्वेश्चन है तो पूछें।